Hello and welcome students. Today's class is for standard 10th CBSE NCERT and of chapter 1st, which is life processes. In our previous lecture we talked about autotrophic nutrition. And what is autotrophic nutrition? Nutrition in which organisms itself prepare their food from simple inorganic substances is called autotrophic nutrition. And autotrophs are the organism which perform autotrophic nutrition. Now heterotrophic nutrition के बारे में भी एक बार हम छोटा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं. Nutrition in which organism get ready-made food from other organisms are known as heterotrophic nutrition. तो सबसे पहले हम autotrophic nutrition में ही हम लोगों ने कल photoautotropic nutrition के बारे में बात की थी. And today we will talk about detailed description of photosynthesis. So let's begin. सबसे पहले a question arises in our mind that what is photosynthesis. So this is a process in which green plants make their own food by using carbon dioxide and water as a raw material in the presence of chlorophyll and sunlight, and they will then converted this raw material into glucose, which is a complex food, and then 6 molecules of water and oxygen. So this is the process we talked about, which is named as photosynthesis. It is a process in which green plants make their own food, which is complex, that is sugar, which is glucose, with the help of simple inorganic raw material, carbon dioxide and water in the presence of sunlight, is known as photosynthesis. Now in this process, oxygen gas is liberated into atmosphere, which is taken by animals through respiration. तो इस चीज़ के बारे में we will detail studied in our next lectures. But first of all we have to know about what the process which is photosynthesis. तो photosynthesis की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, वो हम देख चुके हैं. वेयर दिस प्रोसेस अकर, तो ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट नाम का जो ऑर्गेनेल होता है, सेल ऑर्गेनेल, जिसमें कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है बाय ग्रीन प्लांट्स. एंड देन how this process occur? So this process occur in this process 6 molecule of carbon dioxide reacted with 12 molecules of water in the presence of sunlight, and this process takes place in chloroplast in the molecule of chlorophyll, and then these raw materials converted into glucose, which is a complex substance, and 6 molecules of water and 6 molecules of oxygen, which is further liberated into environment. So this is the process. सबसे पहले क्या होगा? 6 molecules कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्ट करेंगे 12 molecules of water और ग्लूकोज बनाएंगे, दैट इज C6H12O6, और 6 मॉलिक्यूल वाटर के बनाएंगे और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बनाएंगे. ये जो ऑक्सीजन होगी ये एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगी, और यही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जो कि क्लोरोप्लास्ट में होता है. क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल होता है, ग्रीन प्लांट्स में मिलता है एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में भी मिलेगा.
तो यहाँ तक हम आपको अच्छे से समझ में आ गया व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। नाउ व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस के विच अ ग्रीन प्लांट इज नीडेड आर व्हाट आर दिस। तो ये तो हम लोग बात कर चुके हैं रॉ मटेरियल के बारे में। दीज आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। रॉ मटेरियल्स ये दोनों हैं जो कि यूज़ में लेंगे हम, मतलब ग्रीन प्लांट्स फूड प्रिपेयर करने के लिए यूज़ में लेंगे। एंड सबसे पहले इनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? क्लोरोप्लास्ट की, यानी कि ग्रीन प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होना ज़रूरी है। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो लार्जेस्ट ऑर्गेनेल होता है प्लांट्स का। तो जब हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इज़ अ एनर्जी कन्वर्टर। इट इज़ अ लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल फाउंड इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में मिलेगा एंड लीफ में मिलेगा, स्टेम में मिलेगा, क्योंकि ग्रीन कलर का होता है। ये स्टेम को, लीफ को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ये सब बेसिक पॉइंट्स है जो कि हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बात आप लोगों को समझा रही हूँ। मान लो कोई पॉइंट आप लोगों के माइंड से मिस हो जाए तो आप लोग को ये चीज़ अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। और जो क्लोरोफिल होता है वो क्या है? ये कहाँ पे मिलता है? ये मिलेगा थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन जो होती है वो लीफ के अंदर पाई जाती है, जिसमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ओके। और इसमें जो थाइलेकोइड्स हैं वो कैसे होते हैं? फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जो बोरी होती है उसको जब हम एक के ऊपर एक डाल के ऐसे ढेरी बना देंगे तो उसको क्या उस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है थाइलेकोइड का, ओके। या फिर आप छोटे से कुछ 5 रुपये का सिक्का ले लीजिए या 10 रुपये का सिक्का ले लीजिए और एक के ऊपर एक इस तरह से जमाते जाएंगे तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा विच इज़ सिमिलर टू थाइलेकोइड। तो यहाँ तक बात हुई क्लोरोप्लास्ट की। नेक्स्ट इज वेयर इट इज़ सिचुएटेड। ये भी हम बता चुके हैं, लीफ में होता है, स्टेम में हो सकता है, हर उस पार्ट में होगा जो कि ग्रीन कलर का है। ग्रीन कलर के पार्ट में ये क्लोरोप्लास्ट होता है। अगर कोई फ्लावर भी आपको ग्रीन मिल जाएगा तो उसमें भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। यू शुड कीप दिस इन योर माइंड, ओके। उसके बाद हम लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए? वाटर, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एब्जॉर्ब्ड होता है। कहाँ से? वाटर कहाँ से लेंगे वो लोग? प्लांट्स सॉइल से लेंगे, ओके। मिनरल्स सॉइल से लेंगे। मिनरल्स में आते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड पोटेशियम एंड जिंक। तो ये जो मिनरल्स हैं ये सब सॉइल से प्लांट्स जो हैं वो लेंगे और अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट में यूज़ में लेंगे। इनका जो भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है प्लांट्स का वो इन मिनरल्स पे डिपेंडेंट होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ये लोग लेते हैं एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं, वी ऑल नो दैट, और वहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अब अगर हम बात करें आगे की, तो जो प्रोडक्टिविटी होती है अगर वो हमें इंक्रीज़ करनी है प्लांट्स की, तो किस तरह से हायर प्रोडक्टिविटी होगी प्लांट्स में? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए इफ़ दे आर हायर। अगर किसी भी प्लांट को वाटर अच्छे से मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी अच्छे से मिल रहा है एटमॉस्फेयर से, तो उनमें प्रोडक्टिविटी जो है फोटोसिंथेसिस की वो बढ़ जाएगी। और जब टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यानी कि रूम टेम्परेचर पे भी
प्लांट्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा ह्यूमिडिटी के टाइम पे, जैसे कि जब उमस भरा मौसम होता है उस टाइम पे ऐसा जब कंडीशन होती है, या फिर विंटर में और ह्यूमिडिटी में क्या होगा, ह्यूमिडिटी में कि जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, या फिर बहुत ज़्यादा अगर समर डेज हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो भी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो गई। यानी कि प्रोडक्टिविटी चाहिए अगर अच्छी खासी, तो वी हैव टू मेंटेन नॉर्मल टेम्परेचर वाला क्लाइमेट हमें एनवायरनमेंट प्लांट्स को देना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। एक चीज़ और आप लोग देख लीजिए कि जब भी ड्राइनेस होगी एनवायरनमेंट में तब भी उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ होगी। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो हम वी विल टॉक अबाउट दैम इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। मैं अभी स्मॉल आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ओवरव्यू। इसमें 3 तरह के स्टेप आएंगे, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन एंड रिडक्शन। तो यहाँ तक हमने बात की फोटोसिंथेसिस की कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है फोटोसिंथेसिस की, व्हाट आर बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। एंड आई होप एंड आई विश कि आप लोगों को अच्छे से ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। एंड अब आप लोग इसको स्टडी कीजिए, और भी कोई डाउट्स है यू कैन आस्क मी। एंड टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड एन्जॉय लर्निंग।